हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मोनो गुजरात में आपका स्वागत है। तो आज है शहीद दिवस, तो आज प्रोग्राम में है तो वहाँ चलते हैं। चलो आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो चलो मिलते हैं वहीं डायरेक्ट। तब तक टाटा बाय बाय। પટેલ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। આદરણીય રીટાબેનનું પણ વિરાજની સમિતિ સ્વાગત કરે છે। આપણી વચ્ચે ગુજરાત રાજ્ય સરકારના કેબિનેટ મંત્રી આદરણીય રાઘવજીભાઈ પટેલ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। માનનીય ધારાસભ્ય આદરણીય અનિરુદ્ધભાઈ દવે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। આદરણીય અનિરુદ્ધભાઈ દવેનું પણ વિરાજની સમિતિ હૃદયથી સ્વાગત કરે છે। આપણી વચ્ચે દસકોઈના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય અને ઊંઝા ઉમિયામાં સંસ્થાનના પ્રમુખ आदरणीय बाबूभाई जमनादास पटेल अपनी वच्चे उपस्थित है। विराजनी समिति आपनु हार्दिक स्वागत करे छे। अपनी वच्चे साणंदना पूर्व धारासभ्य आदरणीय कमाभाई राठोड अपनी वच्चे उपस्थित है। विराजनी समिति आपनु पण हृदयथी स्वागत करे छे। अपनी वच्चे आवी रह्या छे अपनी वच्चे मेजर ऋषिकेश रामाणीना अने एमनु वधाईने अहींया स्वागत करीशुं। त्यारे आप सौने पण हृदयथी विनंती करूं छुं कि आप सौ लोको ए परिवारजनोना स्वागत माटे परिवारजनोने વધાવવા માટે પોતાના तोड़ के रख देंगे संजीए गुलामी की अमर कहानी लिखेंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। અત્યારે બધા લોકો પોતાનું સ્થાન લઈ લેશો। બધા લોકો પોતાના સ્થાન પર બેસીશું। આવશે ત્યારે 2-5 મિનિટ બાદ આપણા કાર્યક્રમને तो मैं अंदर आ चुका हूँ, एंट्री ले ली। ये मेरा पास था। तो बहुत सारी भीड़ आप देख सकते हो, अच्छा भी लग रहा है। तो चलो आगे का दिखाता हूँ। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मारे रंग दे बसंती चोला।
ભવ્ય આગમન શહીદોના પરિજનોનું કરી રહ્યા છે સૌ. मेरा रंग दे बसंती चोला हो आज रंग दे हो माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला 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 मेरा रंग उन्हीं के परिजन यहाँ पर पधार रहे हैं. हम सभी माँ भारती के जयकारे के साथ उनका स्वागत करते हैं. आप सब मेरे साथ बोलिए भारत माता की. सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये गूंज होनी चाहिए दोस्तों. भारत माता की. भारत माता की. वंदे. ये सिर्फ उन शहीदों के परिजन नहीं है, ये हम सभी के स्नेहीजन है, परिजन है, जिनकी बदौलत आज हम हिंदुस्तान में आजादी की ये खुली हवा ले रहे हैं. एवा शहीदो અને એવા બલિદાન આપનારા આપણા વીરોના આજે પરિવારો આપણી વચ્ચે વીરાંજલિમાં સંમિલિત થઈ રહ્યા છે. આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે. ભવ્ય ગૌરવ આપણું સૌ અનુભવી રહ્યા છે. આ ભવ્ય સામૈયોને સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. એ સૌ મહાનુભાવોનું, એ સૌ સ્નેહીજનો. आज वही दिन आया है सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला 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 आज रंग दे आज रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला 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 रंग दे बसंती ત્રિરંગાના રંગોમાં રંગાઈને જે શહીદોએ ભારત દેશને આઝાદી અપાવી એવા આ વીર શહીદો અને એમની આ આહુતિને દર્શાવતી આ ભવ્ય પ્રસ્તુતિ એટલે કે મલ્ટીમીડિયા શો વીરાંજલિ 2.0 સરહદે સ્વાગત કરીએ છીએ અહીંયા પધારેલા સમસ્ત ગુજરાત રાજ્યના આદરણીય સન્માનીય એવા વરિષ્ઠ મહાનુભાવો, મહેમાનો અને વીર શહીદોના પરિવારજનો. સરહદે સ્વાગત છે આ મંચ ઉપર શ્રી સત્યશીલ રાજગુરુજી, શ્રી આરતી રાજગુરુજી, અમિતભાઈ કિનારીવાલા, કોકિલાબેન દલાલ, શ્રીકાનંદ દલાલ, રાજ્યભાઈ શાહ, શ્રુતિબેન શાહ અને વલ્લભભાઈ રામાણી. શહીદોના સૌ પરિજનોની સાથે સાથે આજે આ મંચ ઉપર આમંત્રિત કરવા જઈ રહ્યા છે એવા મહાનુભાવોને જેમની ઉપસ્થિતિ આપણા સૌ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. શ્રી દિલીપભાઈ દેશમુખને સરહદે વિનંતી કરીશ તેઓ મંચ પર પધારશે. દિલીશભાઈ દેશમુખ, વિનોદભાઈ ચાવડા, શ્રી મયંકભાઈ નાયક, માનનીય સાંસદ શ્રી. સરહદે આમંત્રિત કરીશ માનનીય કેબિનેટ મંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, આપ પણ મંચ પર પધારશો. શ્રી પ્રદીપસિંહજી જાડેજા, પૂર્વ મંત્રી શ્રી, આપને પણ મંચ પર અમે આવકારીએ છીએ. જિલ્લા અધ્યક્ષ શ્રી શૈલેષભાઈ દાવડા, શ્રીમતી કંચનબા વાઘેલા, પ્રમુખ શ્રી અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયત, શ્રી અમિતભાઈ શાહ, અધ્યક્ષ કર્ણાવતી મહાનગર ધારાસભ્ય શ્રી. સાથે સાથે આપણા સૌ માટે પરમ સૌભાગ્યની વાત છે પૂજ્ય સંતો મહંતો પણ વીરાંજલિના આ ભવ્ય શોમાં આયોજનમાં તેઓ પધાર્યા છે. તેઓને પણ અમે મંચ પર આવકારીએ છીએ. સાથે સાથે શ્રી પ્રશાંત વારોટ, તેઓને પણ મંચ પર આમંત્રિત કરીએ છીએ. શ્રી કનકસિંહજી રાણા, જીટીપીએલ, શ્રી અનિરુદ્ધસિંહજી રાણા, જીટીપીએલથી આપણા વકીલા, પ્રમુખ શ્રી સાણંદ તાલુકા પંચાયત, શ્રી ધુમીનભાઈ દોશી, ચેરમેન સાણંદ નગરપાલિકા, શ્રી વીરેન્દ્રસિંહ ઝાલા, પ્રમુખ સાણંદ ભાજપા, શ્રી હસમુખભાઈ સોલંકી, પ્રમુખ સાણંદ તાલુકા ભાજપ, આપને મંચ પર આવકારીએ છીએ. વિનોદભાઈ ચાવડા, એમપી કચ્છ તથા સર્વે મહાનુભાવોનું પણ આ મંચ પર સ્વાગત છે. દીપ પ્રજ્વલન થકી આ ભવ્ય કાર્યક્રમની અહીંયાથી શરૂઆત થશે. વિનંતી કરીશ સર્વે મહાનુભાવોને, સર્વે મંચ પર ઉપસ્થિત મહાનુભાવોને તેઓ દીપ પ્રજ્વલન કરીને આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરાવશે. આપણા ભારત દેશ માટે, આપણી કર્મભૂમિ, આપણી જન્મભૂમિ
માં ભારતી માટે દેશદાજ, જોશ, જુનૂન અને દેશ પ્રેમને ઉજાગર કરતો આ ભવ્ય મલ્ટીમીડિયા શો એટલે વીરાંજલિ 2.0. એકવાર જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે સૌ પણ સહભાગી થઈએ આ ભવ્ય આયોજનના. વીરાંજલિ સમિતિ છેલ્લા 18 વર્ષોથી પ્રદીપજી વાઘેલાનું આ એક ભવ્યાતિ ભવ્ય મહેનત થકી સફળતમ પ્રયોજન એટલે વીરાંજલિ. સર્વે મહાનુભાવો દ્વારા અહીંયા થયું છે. વિશેષ રૂપે દીપ પ્રાગટ્ય સૌના હૃદયમાં બધાના સ્વરથી વિરાજિત એવા વૈશ્વિક લોકપ્રિય કલાકાર કીર્તિદાનભાઈ ગઢવી તથા અન્ય કલાકારો પણ અહીંયા પધારેલા છે, ઉપસ્થિત છે. ત્યારે સૌનું સ્વાગત કરીએ છીએ. માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી જુનાગઢ સંજયભાઈ કોરડિયા તથા સર્વે મહાનુભાવોનું આ મંચ પર સ્વાગત છે. તેઓના દ્વારા દીપ પ્રજ્વલન. એકવાર ફરીથી જોરદાર તાળીઓ સાથે આટલી વિશાળ સંખ્યામાં જન્મેન્દ્રી છે ત્યારે બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. આવો જોશ આનાથી પણ ડબલ થશે જ્યારે વીરાંજલિનો આ ભવ્ય મલ્ટીમીડિયા શો આપ સૌ નિહાળશો. अमर कहानी लिखेंगे कुर्बानी की है જીતુભાઈ ભગત, માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી પ્રકાશભાઈ વનમોરા, એમએલએ દીપિકાબેન સરડવા, પ્રમુખ શ્રી મહિલા મોરચા, આપ સર્વેનું સ્વાગત કરીએ છીએ. અને શ્રી સંજયભાઈ કોરડિયા, ગૌરવભાઈ રૂપારેલિયા, પ્રમુખ જુનાગઢ, અને રાકેશભાઈ શાહ, એક્સ એમએલએ. આપ વિનંતી કરીશ કનુભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય શ્રી સાણંદ, તેઓ સ્વાગત કરશે શ્રી અમિતભાઈ કિનારીવાલાનું. વિનોદભાઈ કિનારીવાલાના પરિજનો અહીંયા છે. ખૂબ જ ગૌરવ જેના પર સમસ્ત ભારત દેશને છે એવા વિનોદભાઈ કિનારીવાલાના પરિજનો શ્રી અમિતભાઈ કિનારીવાલા, તેઓનું સ્વાગત અભિવાદન કનુભાઈ પટેલ. શ્રી કોકિલાબેન નલાલ, વસંતબા વાઘેલાને વિનંતી, તેઓ પણ તેમનું સ્વાગત અને અભિવાદન કરશે. ધ્રુમીનભાઈ દોશી વિશેષ રૂપે અભિવાદન કરશે શ્રી કાનંદ દલાલને. શ્રી ધ્રુમીન દોશી તેઓ રાજીવભાઈ શાહનું સ્વાગત સન્માન કરશે. અને વિનંતી કરીશ કંચનબા વાઘેલાને પ્રયાસના ભાગરૂપે આ ભવ્ય આયોજન વીરાંજલિ સમિતિ તરફથી. વીરાંજલિનો સૌથી પહેલો કાર્યક્રમ બાકરોડામાં 18 વર્ષ પહેલા યોજાયો હતો પ્રદીપસિંહ વાઘેલા બાપુના અધ્યક્ષ સ્થાને. અને જે એમની જ મહેનતથી, એમની જે એક દીર્ઘ દ્રષ્ટિ થકી આજે વીરાંજલિ 2.0 આપ સૌ અહીં જોવાના છો, આપ સૌ એના સાક્ષી બનવાના છો. દેશભક્તિ, દેશ માટેનું જુનૂન અને દેશદાજ આપણા સૌની અંદર પ્રજ્વલિત થાય એવા ઉદ્દેશ રૂપે વીરાંજલિ સમિતિ દ્વારા ભવ્ય આયોજન છે. ત્યારે ભારત દેશની ધરોહર એટલે કે આપણી સંસ્કૃતિ, આપણી કળાને પણ એટલું જ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. અને આપણી સંસ્કૃતિ એટલે આપણો આતિથ્ય ભાવ, આપણી ધર્મપરાયણતા, દાન પુણ્ય કરવાની આપણી નીતિ અને આપણા સંસ્કારો. અને એમાં સૌથી મહત્વનું અને મહાદાન છે એ છે અંગદાન. અને અંગદાન જે વિશે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે એક વિશેષ રૂપે પ્રયોજન અહીંયા હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે અંગદાન પર દિલીપભાઈ દેશમુખજી સ્વયં અહીંયા પધાર્યા છે. દિલીપભાઈ દેશમુખજી અહીંયા પધાર્યા છે. આપ સૌને અંગદાનની જાગૃતિ વિશે બે શબ્દ કહેશો પ્લીઝ. બોલો ભારત માતા કી. વીરાંજલિ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપણે સૌ મલ્ટીમીડિયા શો જોઈનું ન થાય, આપમાંથી કોઈને પણ અંગોની જરૂરિયાત ન પડે. અત્યારે આપણા વર્તમાન પ્રધાનમંત્રી એમને આપણી સામે એક બહુ સારું લક્ષ્ય આપ્યું છે, એ છે વિકસિત ભારતનું. આજે જે કારણસર આપણે ભેગા થયા છે એ ભગતસિંહ, રાજગુરુ, સુખદેવ દેશ માટે એની જવાની ખપાવી દીધી, દેશ માટે બલિદાન થયા. અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ કોઈને, ખાસ કરીને યુવાનોને મારી વિનંતી છે, આવતા 25 વર્ષ આપણા દેશનો અમૃતકાલ આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ કહે છે એ પ્રમાણે વિકસિત ભારત માટે
આપણે જવાની ખપાવી દઈએ. એક સમયે દેશ માટે મરવાની આવશ્યકતા હતી, હવે આવતા 25 વર્ષ દેશ માટે જીવવાની આવશ્યકતા છે. વિકસિત ભારતમાં કોઈને પણ પૈસાના અભાવમાં અને અંગોના અભાવમાં મૃત્યુ ન થાય એવો આપણે સંકલ્પ કરીએ. અંગદાન માટે દુર્ભાગ્ય કોઈને સમય આવે તો આપણે પ્રેરિત કરીએ અને આપણા દેશમાંથી અંગોનો જે અભાવ છે એ સમાપ્ત કરીએ. વિકસિત ભારત તો જ થશે જો ભારતના બધા નાગરિકો સ્વસ્થ હશે. આપ સૌને આપણા સ્વાસ્થ્યની ખૂબ શુભકામના આપું છું અને આ વીરોના વીરાંજલિ કાર્યક્રમમાં દેશ માટે વિકસિત ભારત માટે જીવવાનો સંકલ્પ કરવાની વિનંતી કરું છું. મારી પાછળ એકવાર બોલો અંગદાન મહાદાન. અંગદાન, અંગદાન, અંગદાન. ધન્યવાદ. તેમણે પણ વીરાંજલિ સમિતિને એક ભવ્ય શુભેચ્છા સંદેશ પાઠવ્યો છે, જે અહીંયાથી અમે પ્રસ્તુત કરીએ છીએ. આપ સૌ ધ્યાન દેશો. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી દ્વારા વીરાંજલિ સમિતિને એક ભવ્ય શુભેચ્છા સંદેશ. પ્રધાનમંત્રી સંદેશ. 23 માર્ચે શહીદ દિવસ નિમિત્તે વીરાંજલિ કાર્યક્રમનું આયોજન થઈ રહ્યું છે તે પ્રશંસનીય કદમ છે. જે રાષ્ટ્ર પોતાના ઇતિહાસનું સન્માન નથી કરતો અથવા તેના ઘડવૈયાઓને યાદ નથી રાખતો તે દેશનો વર્તમાન જ નહીં ભવિષ્ય પણ અંધકારમય હોય છે. વીરાંજલિ કાર્યક્રમ દ્વારા આઝાદીની લડતની ભવ્ય ગાથા તેમજ શહીદોના ત્યાગ અને બલિદાનને ભાવપૂર્વક સ્મરણ કરવાનો પ્રકલ્પ આપણા સ્વતંત્ર સંગ્રામના ઇતિહાસને જીવંત રાખે છે. સાથે સાથે નવી પેઢીને, ભવિષ્યની પેઢીને પ્રેરિત કરે છે. શહીદ દિવસ એ મા ભારતીની આઝાદી માટે દાયકાઓ ચાલેલા સંઘર્ષ, દેશ માટે સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરનાર દેશભક્તોને સ્મરવાનો, તેમની પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાનો અવસર છે. આપણે દેશ માટે જીવન ન્યોછાવર તો ન કરી શક્યા, પણ દેશ માટે આપણે જીવી જાણીએ. જવાબદાર નાગરિક તરીકેની ભૂમિકા ભજવીએ એ સમર્થ અને સમૃદ્ધ રાષ્ટ્ર માટે કરેલું યોગદાન જ છે. દેશવાસીઓ માટે રાષ્ટ્રહિત એ સર્વોપરી, નેશન ફર્સ્ટ એ સૌનો જીવન મંત્ર. દેશ માટે આજે કરેલા કાર્ય એ વર્તમાન પેઢીના ભલા માટે તો હોય, પણ એ આવનારી પેઢીના ભવિષ્ય માટે મજબૂત પાયારૂપ બની રહેશે. વિષય, પાત્રો, સંગીત અને ભજવણીનો મોટો પટ જોતા વીરાંજલિ તમામ પેઢીના દર્શકો માટે આકર્ષણ નજરાણું તો બની રહેશે. સાથે સાથે સમસ્ત લોકો માટે, ખાસ તો યુવા દોસ્તો માટે આપણી ભવ્ય ઐતિહાસિક પરંપરા પ્રેરણારૂપ બની રહેશે. આઝાદીના આ અમૃત કાલખંડમાં દેશ વિકાસની અભૂતપૂર્વ ઊંચાઈએ આગળ વધી રહ્યો છે. જનભાગીદારી અને જન સહકારની શક્તિ વડે ઉર્જાવાન રાષ્ટ્ર આજે દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતાના નવા માપદંડ સર કરી રહ્યું છે. 2047માં દેશ જ્યારે આઝાદીનો શતાબ્દી મહોત્સવ મનાવી રહ્યો હશે, ત્યારે ભવ્ય, આત્મનિર્ભર અને વિકસિત ભારત આપણી નવી ઓળખ હશે એવો મને વિશ્વાસ છે. સમગ્ર કાર્યક્રમની સફળતા ઈચ્છું છું. નરેન્દ્ર મોદી. નવી દિલ્હી, 30 ફાલ્ગુન, શક સંવત 1946, 21 માર્ચ 2025. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપનો, આપના આ વિશેષ શુભેચ્છા સંદેશ માટે. એકવાર તાળીઓની ગુંજ સાથે આપણે સૌ વધાવીએ વીરાંજલિની આ ભવ્ય સફળતાને. વીરાંજલિ પાર્ટ 1 જે ગુજરાતના અનેકો કે શહીદોની ઓછી જાણીતી કથાઓ અથવા તો અજાણ્યા શહીદોની કથાઓ લોકો સુધી તમારે પહોંચાડવી જોઈએ. વીરાંજલિ એ માધ્યમ બન્યું મારા જેવા અનેક કલાકારો માટે કે અમે આ કથાઓ સાથે જોડાયા. આજે વીરાંજલિ 2.0 સાથે એક દિગ્દર્શક તરીકે જોડાઈને અત્યંત આનંદ અને ગર્વ તો છે જ, એક કૃતજ્ઞતાનો ભાવ છે. અને હું સમગ્ર કલાકારો વતી આપ સૌને એક એક ત્રણ જ ભાગ કરીએ. વીરાંજલિ 2.0.
વાવટો વાવટો વાવટો. એક બાજુ બીજું વિશ્વયુદ્ધ હાલી રહ્યું છે અને આકાશમાંથી બોમ્બ વરસી રહ્યા છે. અને આપણા દેશમાં હિન્દ છોડોના સરઘસ નીકળી રહ્યા છે. આ સરઘસ બરઘસમાં વિદ્યાર્થીઓએ જવાય જ નહીં. કાલે ઉમાકાંત મરી ગયો બિચારો. દેશ માટે મરે ને બિચારા ના કહેવાય, શહીદ કહેવાય. આયંગર તું પણ? હા ભાઈ, પણ એ ક્યાં આપણા પરિવારનો સભ્ય હતો? ડોન્ટ બી ઇમોશનલ વિનોદ. એમ તો ભગતસિંહ પણ ક્યાં આપણા ફેમિલીના મેમ્બર હતા? તોય દેશ માટે ફાંસીએ ચડ્યા ને. આઝાદે પોતાને ગોળી મારી અને કાલના સરઘસમાં તો છોકરીઓ પણ જવાની છે. હા, અને અમે આંદોલનમાં આગળ ચાલવાના છીએ. તમે લોકો પીછેહટ કરશો તો નમાલા નહીં ગણાવ. મને તો એ જ સમજાતું નથી કે ઇન્ટર સાયન્સ કોલેજમાં આપણે ભણવા આવ્યા છીએ કે આંદોલન કરવા? હે, આંદોલનને ભણવા. દિનુભાઈ, તમારું શું કહેવું છે? અમદાવાદનું આવતીકાલનું આ હિન્દ છોડો આંદોલન સંપૂર્ણ રીતે શાંત અને અહિંસક છે. હા, અહિંસક વિરોધ દર્શાવવાનું છે. પણ મારું મન તો આ ગોરાઓની છાતી પર વાવટો ફરકાવવાનું છે. એ વિનોદ, ગઈકાલે કોઠારી પોળના લાઠીચાર્જમાં પણ તને વાગ્યું છે. વિનોદ, તું ઝંડો લઈને ફરે છે પણ વાવટાની શાન નહીં જવા દો, ભલે મારો પ્રાણ જાય. પૂજ્ય ગાંધી બાપુના શબ્દો હજુ મારા કાનમાં ગુંજે છે કે પથ્થરો પડે ને ફૂર રડી જાય ને એને કબૂતર કહેવાય, એમ પોલીસની લાઠીથી ભાગી છૂટે ને એને કાયર કહેવાય. વિનોદ, તું શૂરવીરતાની વાતો કરે છે, પણ તારો એક વાવટો ફરકાવવાથી દેશ આઝાદ થોડી થઈ જશે? હે આયંગર, આ બ્રિટિશ સરકાર માતેલા સાંઢ જેવી છે, તો એના સિંગડા કોઈકે તો પકડવા પડશે ને. પણ ગોળીબાર થશે તો? રાજા મહેતાની પોળના જમનાદાસ કિનારીવાલાને 5 દીકરા છે, એકાદો ઓછો થઈ જશે, બીજું શું? વિનોદ, દેશભક્તિ માટે ફોર્સ ના હોય, અંદરનો સોર્સ જોઈએ. કાલે જોજો ગોરાઓની હાલત શું થાય છે. વાવટો લહેરાય ને ત્યારે સલામી આપવાનું ભૂલતા નહીં. વાવટાની શાન નહીં જવા દો, ભલે મારો પ્રાણ જાય. વંદે માતરમ! વંદે માતરમ! 10મી ઓગસ્ટ 1942ની અમદાવાદની એ સવાર હતી. 18 વર્ષના દેશભક્ત યુવાન વિનોદ જમનાદાસ કિનારીવાલાની આંખોમાં ચમક હતી અને હાથોમાં હું વીંટળાયેલો હતો. અને બીજા દિવસે સવાર પડી. सादिया साहब। यस कांस्टेबल। लो कॉलेज में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। हाउ मेनी? हजारों की तादाद में। हजारों की तादाद में? माय फुट। कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे? सबको गुजरात कॉलेज के पास आने दो। सर, यहाँ तक आने दे? यस, आई हैव अ प्लान। उधर रास्ता छोटा है, सबको अंदर आने दो, फिर दोनों तरफ से रोड ब्लॉक कर दो। हम सबको उधर ही ट्रैप करेगा। सर, सरघस गुजरात कॉलेज के नजदीक है और कुछ विद्यार्थी के पास तो झंडे भी है। No problem. First you try to stop all stupids. Then my revolver will not stop. Nobody should reach there. I don't want that filthy tricolor in this ground. You understand? Move! તારા શબ્દોને લીધે આવ્યો. ઉમાકાંતને, સોરી, શહીદ ઉમાકાંતને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે. વંદે માતરમ! ભારત માતા કી જય! ભારત માતા કી જય! વંદે માતરમ!
Nobody will cross this line. Otherwise हमसे बुरा कोई नहीं होगा. तुमसे बुरा तो वैसे भी इस दुनिया में और कोई नहीं है. Britishers, हाय हाय. Britishers, हाय हाय. Britishers, हाय हाय. Britishers, हाय हाय. Attack! Shut up, you rascal! You can't stop us physically, but you can't stop our patriotism. Bharat Mata ki jai! Maro, sabka maro, sabka maro. Hey you, stop! Hey, uske हाथ से flag ले लो, I say stop! And then die. वंदे मातरम, वंदे. ઘોડો આયો, બલી ઘોડાયો, સાથે લશ્કર લાયો જી. કિનારી વાલા, દુધમલ લાલા, દોડી આગળ આયો જી. અમદાવાદનો 18 વર્ષનો નવયુવાન વીર વિનોદ કિનારીવાલા, જેને ફરકાવવા શહીદ થઈ ગયો, એ વાવટો એટલે જ હું, તમારો તિરંગો. ભગતસિંહનું સ્વપ્ન, સાવરકરનો સ્વરાજ યજ્ઞ, સુખદેવનું સ્વાભિમાન, રાજગુરુનું નિશાન અને સુભાષચંદ્ર બોઝનું અભિમાન એટલે હું, તિરંગો. ભારતના આવા તો કઈ કેટલાય દેશભક્ત લાડલાઓની શહાદતનો મૂક સાક્ષી. વંદે માતરમ. એક હાથની મુઠ્ઠી. एक था बलिदानी लगे हाथ में भवानी, कट गया था अंग पर हार नहीं मानी. एक हाथ की कहानी, ये है हाथ की कहानी. एक वीर था बलिदानी, गंगा की है जुबानी. अरे सुनी है क्या बबुआ? नहीं 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 नहीं. कौन था वो भाई, नाम बताओ, किस्सा सुनाओ, कहानी गाओ. जगदीशपुर एक राज को छोटो, बिहारी बाबू. कुंवर सिंह का नाम था मोटो. बिहारी बाबू. चितौरा के जंगल में चूमे, जमींदार था. बिहार की माटी को चूमे. सदाचारी था. दान करे और राज चलावे. गुरिल्ला युद्ध में धूम मचाए. अपनी शाल का शेर दहाड़ा, घोड़ा हो हार पछाड़ा, बगावत का बाजे नगाड़ा, पत्तनिया ने पांव पछाड़ा. बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह को एक चिंता खाए जा रही थी. कौन सी चिंता? कुंवर सिंह के बेटे वीर भजन सिंह और पोते रणदलन को भी उसी बात की चिंता थी. किस बात की? अमर सिंह, कौन सी चिंता खाए जा रही है तुम्हें? महाराज कुंवर सिंह की जय हो. बड़े भैया, ये बरतानिया सरकार हमारे जगदीशपुर को कर्जे में डुबो देना चाहती है. मुझे ये गोरों की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही. भाई अमर सिंह, लूटने वालों की नीयत कभी शरीफ होती है क्या? किंतु पिताजी, 18 लाख का कर्जा जगदीशपुर कैसे चुकाएगा? और अच्छा, और रुक क्यों गए? और क्या कहना चाहते हो? जी कुछ नहीं पिताजी. दादाजी, हम कुछ कहना चाहते हैं. छोटा मुंह बड़ी बात. अगर आप शिकार और दान थोड़ा कम कर देते तो यहाँ पर. रणदलन, तू बोलता है हमरा, पर बोलता बहुत है. क्षमा दादाजी. उज्जैन या परमार वंश का लहू है इस कुंवर सिंह की रगों में. शिकार राजा का धर्म है बेटा.
जी। और दान, राजपूत के सामने कोई रोएगा, गिड़गिड़ाएगा तो राजपूत कैसे पीछे हट जाएगा? बेटा रणदलन सिंह, अब गोरों से गोरट में नहीं, जंग में भेंट होगी। कुंवर सिंह का हाथ गोरों से रहम की भीख नहीं मांगेगा। पिताजी, आपकी उम्र 80 साल है, क्या इस उम्र में रण संग्राम उचित होगा? बेटे वीरभजन, राजपूत की उम्र जिए हुए बरसों से नहीं, जीते हुए युद्धों से नापी जाती है। कुंवर सिंह 80 का है, पर उसकी तलवार 16 बरस की है। किंतु बड़े भैया, हमारी संख्या बहुत ही कम है। पांडव भी 5 ही थे। भाई अमर सिंह, घर आई क्रांति का स्वीकार करो। स्वतंत्रता बलिदान मांगती है। नाना साहेब की पेशवाई गई और वो गोरों से लड़ रहे हैं। झांसी का राज गया और लक्ष्मी बाई लड़ रही है। अवध को लूटा गया, हसरत महल लड़ रही है। इस कुंवर सिंह का तो कुछ गया ही नहीं। फिर जंग से क्यों डरे? अंग्रेजों के 18 लाख तो मैंने लोगों में दान कर दिए। मेरे जगदीशपुर में तालाब बन गए, विद्यालय बन गए, मंदिर बन गए। अब सिर्फ कुंवर सिंह की जान बाकी है। मातृभूमि के नाम पर वो भी हंसते हंसते कुर्बान कर देंगे। जय महाकाली, जय महाकाली। समर विजयी वीर कुंवर सिंह की जय हो। रण विशारद बाबू कुंवर सिंह की जय हो, जय हो। और गोरों के दमन और अत्याचार से त्रस्त होकर देश के लोग क्या कहते थे? क्या कहते थे? जाओ जाओ हे अपने देश ब्रिटिशवा, भागो अपने देश। हाँ जाओ जाओ रे अपने देश ब्रिटिशवा, भागो अपने देश। हमरे दिल पे हाँ हाँ जी, हमरे दिल पे हाँ लागत ठेस ब्रिटिशवा, जाओ अपने देश। घूमो दूसरा कोई प्लेस ब्रिटिशवा, जाओ अपने देश। हाँ जी सुन लो आखिरी संदेश ब्रिटिशवा, जाओ अपने देश। सुन लो हाँ आखिरी संदेश ब्रिटिशवा, जाओ अपने, जाओ अपने, जाओ अपने देश। कुंवर सिंह ने देख चलाई बिहार में आजादी आई। जय हो। तलवार मारो रे, फटक लस फंस गयो रे। ओ बाबू हंस गयो रे, हे तातो हंस गयो रे। कुंवर सिंह हंस गयो रे, गोरों को डस गयो रे। अब छोड़ दे फिरंगी हमारा देशवा, कुंवर सिंह के दिल में लगे है अगिया। कुंवर सिंह के दिल में लगे है अगिया। हाँ, कुंवर सिंह के दिल में लगे है अगिया। अब छोड़ रे फिरंगी हमारा देशवा,
બિહારમાં ક્રાંતિના શ્રી ગણેશ થયા. 18 જૂન 1857માં પટણા વીર કુંવરસિંહની આગેવાનીમાં 550 થી વધુ નાના મોટા જમીનદારો, રાજાઓ અને દેશભક્તો ભેગા થયા. એક બિહારી લોકનાયકની વીરતા અને પરાક્રમથી કંપની સરકારના પાયા રચી ગયા. એક વર્ષ સુધી, જી હા, એક વર્ષ સુધી કુંવરસિંહ અંગ્રેજોની કુકરી ગાંધી રહ્યા. કંપની સરકારના સિકંજામાંથી જગદીશપુર, આરા, રીવા અને આઝમગઢ જેવા हासिल की है पर सरकार कंपनी सरकार के सामने एक कछु नहीं. कुंवर सिंह का ताकत क्या है? उसकी हिम्मत. आप लोगन के पास गोला बारूद ज्यादा होंगे पर कुंवर सिंह उससे 5 गुनी ज्यादा हिम्मत के साथ लड़ रहा है. और वो भी अकेला नहीं, 3 पीढ़ी के साथ, वो भी 80 साल की उम्र में. What? Kunwar Singh is 80 years old? Yes sir. बुढ़ा न थकता है न हारता है. Oh my God! Thank God ये अगर जवान होता तो कंपनी सरकार को इंस्टेंट इंडिया छोड़ना पड़ता. जनरल साहब, उसी की खबर लेके आया हूँ. वो हमें चकमा देके नोकी घाट से गंगा पार करने वाला है. खबर पक्की है? जी जनरल साहब. गुड. कंपनी सरकार तुम्हारी वफादारी याद रखेगी. ओके, अब हम नोकी घाट पर ही कुंवर सिंह को मारेगा. उसकी 3 पीढ़ी लड़ रही है. But now ये डगलस उसे ऐसी मौत मारेगा कि उसकी 7 पीढ़ी याद रखेगी. Captain Lugard. Yes, sir. Let's move to Noki. समर लड़े तब जरेला बरतानिया सरकार. जब वीर कुंवर सिंह समर लड़े तब जरेला बरतानिया सरकार. बाबू तलवार चलाई रहे, गौरत में मच गई हाहाकार. बाबू तलवार चलाई रहे, गौरत में मच गई हाहाकार. वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह समर लड़ो. पिताजी, हम पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं. आज आपको बहुत ही बुखार है, आप तनिक आराम कीजिए. बेटा वीरभजन ही ना हुए बा. जब सारी बरतानिया सरकार 1 साल से हमें हरा नहीं पाई, एक बुखार क्या हराएगा? वीरभजन संभल, वीरभजन. पिताजी, आप जगदीशपुर पहुंचो. मेरा वक्त खत्म हो गया. जय काली. जय काली बेटे, तुझे वीर गति प्राप्त हो. फिरंगी. बड़े भैया, बड़े भैया, खबर मिली है कि डगलस नोकी घाट पे हमारी राह देख रहा है. अच्छा, तो हम शिवपुर घाट से गंगा पार करेंगे. नाव तैयार करो. तीन पीढ़ी लड़ मरे वतन पे, माँ का खून चुकाइल बा. जब 3 पीढ़ी लड़ मरे वतन पे, माँ का खून चुकाइल बा. बापू तेग धरे रण में तो झटके सबके छुड़ाइल बा. कैप्टन लुगार, हम कब से इंतजार कर रहा है. Where is कुंवर सिंह? किधर है वो? My foot!
हाइड एंड सीक का खेल खेल रहा है कुंवर सिंह। और आज डगलस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, किसी भी हालत में वो जिंदा निकलना पाए। काटे दादाजी, दादा, ये बात मैं कैसे करूं, कैसे करूं? वीर वंश के सपूत हवरण दलन, ये बात तोहरा शोभा नहीं दे, हमरा हाथ काटे। दादा, आपके हाथों ने मुझे खिलाया है, इसे कैसे काटूं मैं? नहीं, नहीं। ओ गंगा मैया, वीर ने काटा हाथ रे, ओ गंगा मैया, वीरता हुई अनाथ रे, ओ गंगा मैया। अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा गीता, कोई देखे उससे पहले ही हम निकल जाएंगे। खबरदार केशव, तुम्हें क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा? अरे सुनो गांव वालों, अरे यहाँ अनर्थ होते होते बचा है। केशव और गीता चुपके से मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे थे। केशव, अगर दूसरी बार मंदिर में पैर रखने की कोशिश करोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। हम तुम्हें अपवित्र मानते हैं। ईश्वर सिर्फ आपके ही है पुजारी जी। क्या सबके ईश्वर अलग अलग होते हैं? क्या हमारी रगों में काला खून बह रहा है? भाई, लाज नहीं वाटतं का तुला? पुजारी जी के सामने बोल रहा है। हमें माफ कर दो, मैं पेट से हूँ, मुझे खून की उल्टियाँ हुई थी, मेरा बच्चा गिर ना जाए इसलिए इस मंदिर की चौखट पर दर्शन करने हम चोरी छिपे आए थे। हमारी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। चलो केशव, इस जन्म में हमारे नसीब में भगवान के दर्शन नहीं है, चलो। रुको गीता और केशव, रुको। हमारे मंदिर में तुम्हारा स्वागत है, हम ले जाएंगे तुम्हें। अरे कौन है? हमारा धर्म भ्रष्ट करने आए हो? आखिर कौन से मंदिर में प्रवेश दिलाओगे इन्हें? तुम आखिर हो कौन? मेरा नाम डेविड है और ये स्टेफी है। गीता बहन, हम तुम्हें जहाँ ले जाएंगे गौद तो वहाँ भी है, चलो। नहीं नहीं, मैं मेरा धर्म नहीं बदलूंगी। केशव, मैं मेरे बच्चे को। अरे किस धर्म की बात कर रही हो गीता? इस धर्म की जहाँ सदियों से हमें गाली गलौज और तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिला है। इस तिरस्कार के कारण ही मैं दिलीप से डेविड बना और ये संध्या से स्टेफी। केशव, ज्यादा सोचो मत, वहां वैसे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं और हमारा धर्म सबको स्वीकार करता है। फ्रॉम नाउ नो हरिओम, हरिअप। गीता, धर्म बदल लो, ना कोई घंटी है, ना तिलक, ना कर्मकांड, ना कपड़ों का बंधन है, ना खाने पीने का। हमारे रिलीजन में फ्रीडम ही फ्रीडम है। नाम बदलेगा, लिबास बदलेगा और जीवन भी। और बदले में क्या मिलेगा? नई पहचान मिलेगी, अंग्रेज सरकार में नौकरी मिलेगी और बहुत सारे पैसे भी। वैसे भी एक दो हिंदू कम हो जाएंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु हिंदुस्तान को फर्क पड़ेगा। अस्पृश्यता समूची मानव जाति के लिए कलंक है और पिछले 1200 सालों से हमारी गुलामी का कारण भी। मैं विनायक दामोदर सावरकर, जिनको आप अपवित्र मानते हैं, उनका मंदिर में प्रवेश का समर्थन करता हूं। तो सावरकर, ईश्वर अपवित्र होंगे। जिसे अपवित्र किया जाए वो ईश्वर नहीं, मान्यताएं हैं।
ईश्वर पतित पावन है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मानव मात्र उसी की संतान है। तुम पशु पक्षियों को छूते हो, कुत्तों और बिल्लियों को प्यार कर सकते हो, और एक मनुष्य के साथ इतना तिरस्कार कैसे कर सकते हो? हिंदुत्व में कोई छुआछूत है ही नहीं। हिंदुत्व वही किसी पिटी पुरानों वाली कथा। हंस लो, मगर याद रहे मिस्टर एंड मिसेस डेविड, इस धरती पर जब कोई पंथ, कोई मजहब, कोई रिलीजन नहीं था, तब से हिंदुत्व था। ये सनातन है, था और रहेगा। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य परिणामी यस्तम वेद स वेदवित्। एक्सक्यूज मी, हिंदू? कौन है हिंदू? और आखिर क्या है ये हिंदुत्व की व्याख्या जो आप इतना चिल्ला रहे हो? क्यों ना चिल्लाओ? इस खून के एक एक कतरे में हिंदुत्व है। जिसने भी सिंधु नदी का पानी पिया वो सारे हिंदू। हिंदू और हिंदुत्व केवल शब्द नहीं, एक संपूर्ण इतिहास है, जिसके लिए हमारे शूरवीर योद्धा शालिवाहन से शिवाजी तक, शत्रुओं से शताब्दियों तक जिए और मर मिटे। वो नाम है हिंदुत्व। गोस्वामी तुलसीदास, वाल्मीकि और वेद व्यास ने जिसका गौरव गान गाया, वो नाम है हिंदुत्व। महाराणा प्रताप का व्रत है तो मां सीता का सत है हिंदुत्व। केशव के सुदर्शन की धार, गीता का सार और लक्ष्मीबाई की तलवार है हिंदुत्व। यमुना जी स्वामी, आज संक्रांति का पवित्र दिन है और ये हमारी बहन गीता तुम्हें हल्दी कुमकुम लगा सकती है। बोलो यमुना। सावरकर, ये क्या कर रहे हो तुम? बोलो यमुना। बिल्कुल स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ। मानव धर्म ही सच्चा धर्म है। आओ गीता, मुझे हल्दी लगाओ। यमुना दीदी, मैं कैसे छू सकती हूँ? हमें तो सिर्फ मंदिर जाना था। हमें तो सब निम्न समझते हैं। एग्जैक्टली, पर हमारे यहाँ सब इक्वल है। हमारे साथ चलो। हाँ गीता और केशव, हमारे साथ चलो। जाति जीने के लिए होती है, दिखाने के लिए नहीं। आओ गीता, डरो मत। आओ। हर हिंदू मेरा भाई है। जन्म और जाति पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम है। आओ केशव, मुझे वचन दो कि जब भी मेरा देहांत हो तब तुम मुझे कंधा दोगे, तभी मुझे सद्गति प्राप्त होगी। नहीं विनायक भाव, नहीं। वचन दो। आओ भाइयों, हिंदू बनो। न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, केवल हिंदू जो सबका स्वीकार करे, अन्याय का प्रतिकार करे और प्रकृति को प्यार करे। ऐसा हिंदुत्व हृदय में दृढ़ करो। सावरकर जी, भरोसा रखना, हम सब कुछ सह लेंगे। किंतु हमारा हिंदू धर्म नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। सावरकर, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। भाई केशव, बहन गीता, मंदिर में आपका स्वागत है। आओ। भाई डेविड, तुम्हें भी फिर से दिलीप बनने का जब भी मन करे तो घर वापसी कर लेना। मंदिर के द्वार खुले हैं, शुद्धिकरण संभव है। ग्रामजनों,
अगर किसी दिन दिलीप और संध्या भी मंदिर आए तो इनका भी स्वागत करना। याद रहे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की धरती पर या तो हिंदू है या पूर्व हिंदू, हम सब एक ही सिंधु के बिंदु। આવા પ્રથમ પંક્તિના ક્રાંતિવીર શોના વાણા તોડ્યા અને રત્નાગીરીમાં દેશનું પ્રથમ પતિત પાવન મંદિર બનાવ્યું. તેથી તિરંગો તેને વીર સાવરકર કહીને સંબોધે છે. વીર વિનાયક સાવરકરને પ્રત્યેક સૂર્યાસ્તમાં બ્રિટિશનું પતન અને દરેક સૂર્યોદયમાં હિન્દની સ્વતંત્રતા દેખાઈ. એ સાવરકર જ હતા જેણે નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝને બર્લિન જવાની પ્રેરણા અને નેતાજીએ સાવરકર લિખિત
1857 સ્વાતંત્ર્ય સમર આ પુસ્તક પરથી જ તો આઝાદ હિંદ ફૌજમાં 86 રેजिमेंट સ્થાપ્યું। का बेटा हूं। स्वतंत्रता का सूर्योदय बस तुरंत हो, शीश काट के मां के चरण में लेटा हूं। मैं सुखदेव भारत मां का बेटा हूं। ओए जियो मेरे यारा। ओए शिवराम किथे है? वो आ गया जी, आ गया। ओए येलो। मैं शिवराम राजगुरु की शान हूँ, गद्दारों पर गोली का निशान हूँ। जंजीरों में जख्मी है भारत माता, मैं माँ के होठों की मुस्कान हूँ। मैं शिवराम राजगुरु की शान हूँ। ये बात। हाँ हमारे हाथों में हथियार है, हाँ हमारे हाथों में हथियार है। आजादी जनगण मन का अधिकार है, अहंकार और अत्याचार पर वार है, वीरता का श्रृंगार है। हम मरने को तैयार है, हम मरने को तैयार है, हम मरने को तैयार है। वंदे मातरम।
60,000 रुपये की अंग्रेज सरकार से तेरी जमानत करवाई है, और तू अब क्रांति की अमानत हूं। बाबूजी, देश बुला रहा है, मजबूर हूं। जा पुत्र जा। 5-7 पीढ़ियों के रक्त सिंचन से क्रांति के पौधे आंगन में पलते हैं। तू अब हमारी नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, क्योंकि तूने स्वतंत्र देवी की आवाज सुन ली है। ओए, एक बार गले नहीं मिलेगा अपने बाबूजी से। बाबूजी, जा जा भगत जा, अब मुड़ के ना देखिए, यहां भी और क्रांति के पथ पर भी। जा, शहीद भगत सिंह का बाप कहलाने में इस किशन सिंह को फक्र होगा। पर तेरी बेबे से क्या कहूं? जब भी मैं शहीद हो जाऊं, बेबे को मेरी लाश लेने मत भेजना, गुलतार को भेज देना। पर क्यों? एक मां से ये हक भी छीनेगा? बाबूजी, मेरी लाश देख के अगर मां रो पड़ेगी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है। बस मां से कहिएगा, उससे ज्यादा भारत मां को मेरी जरूरत है। ओए भगत सिंह, क्रांति के पथ पर तुम्हारे कदम लड़खड़ा है, और मेरी या तेरे बेबे की याद आए तो इतना याद रखना, परिवार से देश नहीं बनता, देश से परिवार बनता है। सचमुच देश से ही परिवार बनते हैं। अरे जय गोपाल, क्या बात है? और भगत राजगुरु सुखदेव, तुम यहाँ हो? ये लो, संदेश आया है। लो, हमारे ऐसे सारे के परिवार से आजाद जी का संदेश आ गया है। क्या संदेश आया? आज 17 दिसंबर दोपहर को ही लाला जी का बदला लेना है। ओए, मैं तेरे सदके जाऊंगा राजगुरु। एक मिनट। आज से हम एक दूसरे को कोड नेम से ही बुलाएंगे। याद है ना राजगुरु, तुम्हारा नाम मिस्टर एम है? जी मिस्टर विलेजर। और ओए, इस बलवंत को तो सब याद है। बलवंत। विलेजर। मिस्टर एम। तो भाइयों, लाला जी पर लाठी चार्ज का हुक्म देने वाले जनरल स्कॉट को आज इस विलेजर की पिस्तौल से कोई नहीं बचा पाएगा। लाला जी पर वार करने वाला सेंडर्स दिखेगा तो उसे भी उड़ा देंगे। चिंता मत करना, तुम दोनों निशाना चूक गए तो भी इस एम का निशाना नहीं चूकेगा। सब तैयार? इनकलाब जिंदाबाद। तो मिस्टर विलेजर, प्लान क्या है? तो सुनो, हमारा पहचानते हैं कि कौन सेंडर्स है और कौन स्कॉट। इसीलिए तो जय गोपाल चौराहे पे साइकिल लेके खड़ा होगा, वो पहचानता है गोरों को। पर वो हमें कैसे बताएगा? बलवंत, जैसे ही दोनों में से कोई बाहर आएगा, जय गोपाल रुमाल गिरा के इशारा करेगा। जैसे ही रुमाल गिरेगा, लाला जी का हत्यारा डर के दरवाजे पहुंचेगा। वंदे मातरम। ધબકાર ચૂકી ગયો, પણ આ ત્રણેય જેલમાં મૃત્યુની રાહ જોતા શું કરતા હતા જોઈ લ્યો. अरे चुप हो जाओ, मैं कहता हूं चुप हो जाओ। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, जेलर साहब को ही बुलाना पड़ेगा।
कहाँ आवाज कर रहे हैं? आपको देखकर चुप हो गए साहब। अरे वो जेलर साहब, आपसे एक विनती है, हमारे साथ युद्ध बंदियों जैसा व्यवहार किया जाए। कहना क्या चाहते हो तुम? हमें फांसी मत दीजिए। हाँ हाँ, फांसी मत दीजिए। क्यों? मौत के डर से सारी हेकड़ी निकल गई तुम लोगों की? कहाँ गई तुम्हारी देशभक्ति? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ओए चत्तर सिंह, क्या करे इनका? फांसी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुमको? हम चाहते हैं हमें गोलियों से उड़ा दो। हाँ हाँ, हमें गोलियों से उड़ा दो। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अरे जेलर साहब, ओए जेलर साहब, अब आ गए ओए। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी दोस्तों। हमारी चिताओं पर पड़ेंगे खाक के ठेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। भारत को जितना तैमूरलंग और नादिर शाह ने नहीं लूटा, उससे ज्यादा गोरों ने लूटा है। दरिंदों, हमें मुक्ति नहीं, मृत्यु चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश में कोई इतना धनी न हो कि वो सब कुछ खरीद ले, और कोई इतना गरीब भी न हो कि उसे खुद को बेचना पड़े। असमानता पर अंकुश जरूरी है। अंकुश के लिए क्रांति जरूरी है। क्रांति के लिए फांसी जरूरी है। चत्तर सिंह, इन तीनों की फांसी 24 मार्च को तय हुई थी, पर ऊपर से ऑर्डर है कि इन तीनों को आज 23 मार्च को ही लटका दिया जाए। ये तो सरासर नाइंसाफी है खान बहादुर साहब। फांसी के अगले दिन तो सगे संबंधियों का मिलने का दिन है, और सीधे वाइस रॉय के ऑर्डर है, तीनों को इत्तला कर दो, काला कपड़ा पहना दो, जल्दी करो। जी। चलो, तुम्हारी फांसी का वक्त हो गया, ये पहन लो। ये काला कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, आजादी की लड़ाई के क्रांतिकारी सिपाही हैं हम। जेलर साहब, कोई चोर उचक्के डाकू नहीं है, और इसी बहाने हमारी आखिरी मुस्कुराहट तुम भी देख पाओगे। चलो, जहां ले चलना है। इनकलाब जिंदाबाद। कोई अंतिम इच्छा? देश की आजादी। आखिरी बार पूछ रहा हूं, कोई अंतिम इच्छा? हम तीनों गले मिलना चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Time to die. Hang them. चत्तर सिंह, इन तीनों की लाशों को काट कर सतलज में बहा दो, ताकि इनके मंदिर न बने। यही ऑर्डर है। ए जल्लादो, મોતનો મલાજો તો જાણવો. ભગત સુખદેવ અને રાજગુરુની લાશો અંગ્રેજોને શું નુકસાન પહોંચાડવાની હતી? 24 માર્ચની જગ્યાએ એક દિવસ વહેલી ફાંસી આપીને તમે આ ત્રણ વીર સપૂતોની હત્યા કરી છે. હત્યા.
મરનારના સ્વજનોનો છેલ્લો અધિકાર હોય શબના અંતિમ દર્શનનો એ પણ છીનવ્યો. પરિવારના સ્વજનો તો આ ત્રણેય. आप ही ने कहा था परिवार से देश नहीं बनता, देश से परिवार बनता है. वंदे मातरम. ફાંસીમાં લાશના ટુકડા કરી તેને સળગાવી દેવી એ સંપૂર્ણપણે અવૈધાનિક, અમાનવીય અને નીચ કૃત્ય કર્યું અંગ્રેજોએ. પોતાની જાતને સૌથી સભ્ય અને સંસ્કારી ગણાવતા આ ગોરાઓએ જાળવી રાખશો, કોઈ પોતાના સ્થાનેથી નહીં જાય. ભાઈઓ બહેનો, આપણી વચ્ચે શહીદ ભગતસિંહનો પરિવાર પર ઉપસ્થિત છે. હું વિનંતી કરીશ શ્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલાજીને કે તેઓ શહીદોના તમામ પરિવારને ઉપર મંચ પર લાવશે અને આપનું સ્થાન ત્યાં જ જાળવી રાખશો. એકવાર જોરદાર તાળીઓ તમામ કલાકાર અને કસબીઓ માટે. વિરાંજલી 2.0 ladies and gentlemen. આપણી વચ્ચે ગુજરાત સરકારના પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી અને અમારા વડીલ આદરણીય ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ગુજરાતના સહકારી આગેવાન આદરણીય અજયભાઈ પટેલ સાહેબ ઉપસ્થિત છે. તમે બંને મહાનુભાવોને પણ વિનંતી કરું કે મંચ પર પોતાનું સ્થાન લે. આપણી વચ્ચે દુર્ગાભાભી પરિવારમાંથી જગદીશભાઈ ભટ્ટ અને કવિતાબેન ભટ્ટ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. સુખદેવ થાપર પરિવારમાંથી શ્રી અનુજ થાપર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ભગતસિંહ પરિવારમાંથી આદરણીય કિરણજીતસિંહ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. જોરદાર તાળીઓથી આ ભગતસિંહ પરિવાર, દુર્ગાભાભી પરિવાર, સુખદેવ થાપર પરિવાર, રાજ્યગુરુ પરિવાર, વીર વિનોદ કિનારીવાલા પરિવાર અને મેજર ઋષિકેશ રામાણી પરિવારને પણ અહીંયા વધાવવા માટે આપણી વચ્ચે બધા આવો. આપણી વચ્ચે શહીદોનો પરિવાર ઉપસ્થિત છે. આજે શહીદ દિવસે આપણી વચ્ચે દુર્ગાભાભી પરિવારના સ્વાગત માટે હું તાલુકા ભાજપના પ્રમુખ હસુભાઈ સોલંકીને વિનંતી કરું કે દુર્ગાભાભી પરિવારના જગદીશભાઈ ભટ્ટ અને કવિતાબેન ભટ્ટને આપણું સ્મૃતિચિહ્ન આપી અને આદરણીય ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા સાહેબને વિનંતી કરું કે દુર્ગાભાભી પરિવારનું સન્માન કરે. આદરણીય ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા સાહેબ અને આપણા તાલુકાના પાર્ટીના પ્રમુખ સુખદેવ થાપર પરિવારના સ્વાગત માટે, શ્રી અનુજ થાપરના સ્વાગત માટે હું આદરણીય અજયભાઈ પટેલ સાહેબને પણ વિનંતી કરું અને રણધીરસિંહજી પટેલિયાને વિનંતી કરું, જિલ્લા યુવા મોરચાના પ્રમુખને, કે અનુજ થાપરનું સ્વાગત કરે. આપણા ભગતસિંહ પરિવારમાંથી આપણી વચ્ચે કિરણજીતસિંહજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આપણા વિરાંજલી સમિતિના પ્રદીપસિંહજી વાઘેલાને વિનંતી કરું
કે આદરણીય કિરણજીત સિંહને સન્માન કરે, કિરણજીત સિંહજીનું સન્માન કરે અને તેની સાથે જ આદરણીય કિરણજીત સિંહજીને વિનંતી કરું કે આ અહીંયા ઉપસ્થિત સાણંદની ધરતી પર ઉપસ્થિત ભગતસિંહજી, સુખદેવ, રાજગુરુ જેવા અનેક વીરોને યાદ કરતા દેશભક્ત નાગરિકોને આપ સૌ આપ મેસેજથી આપ આપના વાતથી વાત કરશો આદરણીય કિરણજીત સિંહ। सम्मानीय अतिथिगण, प्रदीप सिंह, यहाँ पर आए सभी नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गों, वंदनीय मातृशक्ति, आज वीरांजलि के इस अद्भुत कार्यक्रम में आके मन गदगद हो गया, भाव विभोर हो गया और ये लगा कि हम उस युग में पहुंच गए जब सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हुए अपना बलिदान दिया था। मेरे पिता सरदार कुलतार सिंह 12 वर्ष के थे जब शहीद भगत सिंह जी को फांसी का आदेश हुआ। अंतिम भेंट के लिए पूरा परिवार 3 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में मिलने के लिए गया तो मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गए ये देख के कि अब भाई से दोबारा मिलना नहीं होगा। तो उन्होंने, भगत सिंह जी ने अपने जीवन का अंतिम पत्र उन्हें लिखा कि प्यारे कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, हौसले से रहना और शिक्षा ग्रहण करना। और फिर उर्दू में 2 शेर लिखे, उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। कोई दम का मेहमान हूं अहले महफिल, चिरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूं और सुबह के उस दीपक की तरह हूं जब दिन निकलेगा और वो दिया बुझ जाएगा। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे न रहे। ये मानव शरीर तो मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं तुम्हारा भाई भगत सिंह। और ये कार्यक्रम इतना अद्भुत था कि भगत सिंह जी के जीवन की हर घटना को, उनके विद्यार्थी जीवन से लेके जब उन्होंने वीर सावरकर की पुस्तक भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम प्रकाशित करके वितरित की, जैसे उन्होंने नवयुवकों का संगठन नौजवान भारत सभा बनाया और जो उन्होंने काम किए उसके बारे में इतना सुंदर कार्यक्रम मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। मैं आयोजकों का, वाघेला जी का और पूरी टीम को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। आपने हमारा जो स्वागत किया, मैं बहुत ही विनम्रता से उसे स्वीकार करते हुए कहता हूं कि हम तो एक माध्यम है, निमित्त मात्र हैं। ये सम्मान आपने उन शहीदों का किया है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हंसते हंसते अपने बलिदान दिए। गुजरात के प्रख्यात कवि झावेरचंद मेघाणी जी ने उस युग में कहा था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को टुकड़ों में काट के जला के ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम इस क्रांति की ज्वाला को बुझा देंगे, लेकिन उनकी चिता से जो चिंगारियां निकली, उन्होंने पूरे देश में इंकलाब जिंदाबाद के नारे को पहुंचा दिया। आज हमें प्रण लेना है कि ये जो आजादी हमें इतने बलिदान देके मिली है, हम इसे अक्षुण्ण रखें, देश से बुराइयों को खत्म करें और भारत को दुनिया का सिरमौर बनाएं, विश्व गुरु बनाएं, उनके सपनों को पूरा करें। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा और यहाँ के सारे संगठन के कार्यकर्ताओं और माननीय चौटासन जी का, मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये आए और इन्होंने इतना दिल से सबका स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ભારત માતા કી ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણને સૌને લાગણીભરી વાત કરવા માટે હું સુખદેવ થાપર પરિવારમાંથી શ્રી અનુજ થાપરજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. હું એમને પણ વિનંતી કરું કે આપ સાણંદના દેશભક્તોને વાત કરો. वंदे मातरम. आज मुझे काफी अच्छा लगा वीरांजलि का. तो इसमें एक मेरे मन में बहुत बात है. देखिए, इंडिया गेट के सामने ये मुद्दा मैंने बहुत पहले से उठाया हुआ है. हमने कहा हम गुलाम नहीं हैं. क्या आप जानते हैं इंडिया गेट को बनाने वाले अंग्रेज लोग थे? क्या आप जानते हैं? और किन के नाम लिखे हैं उसके ऊपर? जिन भारतीयों ने उनकी सेवा करी. आपके जैनी गुरु के साथ में जो अभी शहीद हुए हैं, अपने मृत्यु हुई है जिनकी, उनसे हमारी बात हुई थी. उन्होंने कभी किसी को हराना है आपने तो उसकी बगल में उससे 1.5 गुना ज्यादा बड़ा एक भारत द्वार बने जिसमें भगत सिंह सबके नाम लिखे हो, उसके अंदर सावरकर जी का नाम लिखा हो. एक बच्चा उसके नीचे जाएगा, जब पूछेगा कौन है भगत सिंह, तो बाप को जो नहीं भी जानता तो वो देखेगा, पढ़ के बताएगा. हम में मुसीबत क्या है कि हम लोग शहीद भगत सिंह के नाम पे नारे लगा देते हैं, लेकिन क्या हम भगत सिंह को जानते हैं? क्या भगत सिंह हाथ में बंदूक पकड़ के गोली उड़ाना चाहते थे किसी को? क्या वो आतंकवादी थे कि देशभक्त थे? मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये मुद्दा बहुत पहले से हमारा उठा हुआ है. किसी को हराना है. देखिए, जब तक भारत द्वार नहीं बनेगा आपको नहीं लगेगा कि आप पूरी तरह आजाद हैं. लेकिन जिस दिन उस भारत द्वार के नीचे आप खड़े होंगे, आप खुद उस समय हम लोग ही कहेंगे कि हाँ, हम आजाद हैं, हम भारतीय हैं. वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां. हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है. देखिए, देश आजादी के उस मोड़ पे है जब अब देश के युवा अब ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, नहीं कर सकते. अरे हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले तो देश के अंदर वो बदलाव ला सकते हैं. नरेंद्र मोदी जी का हर बार मैं भाषण सुनता हूं इस बात पे. जिस दिन हमने हाथ थाम लिया और देशभक्ति की राह में आ गए, जो धर्म के नाम पे जहां मेरे मन में से मेरे लिए मेरी आत्मा से भारत माता का नाम निकले और वो निकले भारत आगे जाती रहे, तो उस दिन क्या होगा? दिल से एक मेरी प्रश्न पूछने की आदत है. अगर देश बटा होगा क्या हम लोग खुश रह पाएंगे? हाँ या ना? तो जोड़ेंगे कैसे? हाथ तो हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा एक दूसरे का. जब तक गुलामी नहीं छोड़ेंगे. अंग्रेजों, अभी एक ड्रामा था, उसमें बताया गया था कि अंग्रेज ही सबसे बड़ी मुसीबत है हमारी. लेकिन लड़ेगा कौन? हमें ही लड़ना पड़ेगा. अगर हम लोग नहीं लड़ रहे, हम कुछ नहीं कर सकते. फिर आपसे हाथ जोड़ के आखिरी बार खत्म कर रहा हूं. देखिए, आपसे प्रार्थना है, भारत द्वार हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है. एक बार उसको देखिए और इसमें हमारा सहयोग कीजिए. धन्यवाद. वंदे मातरम. આભાર. હવે દુર્ગાબાબી પરિવારમાંથી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત શ્રી જગદીશભાઈ ભટ્ટને આપણને સૌને શુભેચ્છા આપવી છે, આ કાર્યક્રમની શુભેચ્છા આપવી છે. અને ઉત્તર પ્રદેશથી આ કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી દુર્ગાબાબીના પરિવારને સ્વાગત કરીએ. हमारे साथ सबसे पहले नारा लगाएं, वंदे मातरम, वंदे वंदे. गुजरात की पावन धरा पर आकर मैं स्वयं अभिभूत हूँ और वीरांगना दुर्गा भाभी के वंशज होने के नाते जो सम्मान, जो स्वागत, जो अभिनंदन आप लोगों ने किया, वो अत्यंत सराहनीय और स्तुत्य है. मैं कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रताप जी सिंह जी वाघेला, गुजरात सरकार के मंत्री राघव जी और अन्य पूर्व मंत्री तथा सारे लोगों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इतना, और उनकी टीम का
जिन्होंने अथक प्रयास करके ये वीरांजलि जो पिछले 17-18 वर्षों से पूरे गुजरात में हो रही है, इस महाआयोजन के द्वारा देश के युवाओं पीढ़ी को जो संदेश मिलता है, देश के स्वाधीनता संग्राम के जिन सेनानियों ने अपना जीवन सर्वस्व किया, न्यौछावर किया, उससे प्रेरणा उनको मिलती है। उन प्रेरणास्पद इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के इतिहास को, देश के उस गौरवशाली इतिहास को और स्वतंत्र वीरों के जीवन चरित्र को जो बताया जाता है, उसके लिए बहुत बहुत आप सब लोगों को बधाई। इतनी देर रात तक भी आप लोग यहाँ पर अपार जन समूह बैठा हुआ है, वो ये बता रहा है कि किस प्रकार से आप लोग देश की इस आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोगों के, सूरवीरों के जीवन संग्राम को, उनके स्वातंत्र संघर्ष को आप लोग सुनना चाहते हैं। वीरांगना दुर्गा भाभी का जो है मूलतः जन्म गुजरात प्रांत से है, इसलिए ये मुझे बताने में बहुत हर्ष हो रहा है। वर्षों पूर्व विसनगरे हम लोग हैं, यहाँ से माइग्रेट होकर के उत्तर प्रदेश में गए थे। दुर्गा भाभी के पिता पंडित बांके बिहारी भट्ट वहाँ पर कलेक्ट्रेट जो प्रयागराज कहलाता है, इलाहाबाद में नाजिर थे, और कौशाम्बी जिले में सिराथू तहसील में उनका जन्म हुआ। लाहौर में रहने वाले शिवचरण बोहरा जी के पुत्र भगवती चरण बोहरा से उनका विवाह हुआ, और जो उन्होंने देश की आज़ादी में जो उन्होंने अपना बलिदान दिया वो सब आप लोग जानते हैं। भगवती चरण बोहरा 29 मई को शहीद हुए भगत सिंह को छुड़ाने के लिए जो बम का ट्रायल हो रहा था, और सैंडर्स के हारने के बाद दुर्गा भाभी, सुखदेव और राजगुरु जिस प्रकार से गए अंग्रेजों को चकमा देते हुए, वो सब आप लोगों से छिपा नहीं है। चाहे गवर्नर हेली को मारना हो, और जिस प्रकार से टेलर के ऊपर उन्होंने गोली चलाई, उसके बाद लखनऊ मॉन्टेसरी विद्यालय की स्थापना की, और उसके पीछे उनका यही रहस्य था कि किस प्रकार से हम देश के नौनिहालों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ें, जाने कि क्रांतिकारियों ने थ्योरी ऑफ बम बताई, भगवती चरण बोहरा ने बनाई। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य बम बनाना इसलिए नहीं है कि हम मारना और काटना चाहते हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं जो देश के भगत सिंह ने तमाम सारे उन सिद्धांतों को लिखा, उनको बताया विचारों को, कि देश में सर्वहारा वर्ग की कैसे अभ्युदय हो, कैसे लोगों का जीवन स्तर सुधरे, कैसे देश आरती वीर जवानों की, इंकलाबी अरमानों की, आरती वीर जवानों की, इंकलाबी अरमानों की। भारत की शान, हिंद की जान, तू स्वाभिमान, क्रांति पथ के फरमानों की, इंकलाबी अरमानों की, आरती वीर जवानों की, इंकलाबी अरमानों की। भगत सुखदेव चढ़े फांसी, मरे मुख पर लेकर हांसी। भगत सुखदेव चढ़े फांसी, मरे मुख पर लेकर हांसी। वीरांगना थी रानी झांसी, भारत की शान, हिंद की जान, तू स्वाभिमान, क्रांति पथ के फरमानों की, इंकलाबी अरमानों की, आरती वीर जवानों की, इंकलाबी अरमानों की। चंद्रशेखर और सावरकर, सुभाष जी बंधु चापेकर, चंद्रशेखर और सावरकर, सुभाष जी बंधु चापेकर, लाला जी के
हाथ के फरमानों की, इनकलाबी अरमानों की, आरती वीर जवानों की, इनकलाबी अरमानों की। વીરાંજલિ સમિતિ વતી તમામ કલાકાર કસબીઓ વતી આદરણીય શ્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા અને તમામ ટીમ વતી આપ સૌ રાષ્ટ્રભક્તોને અમે કલાકારો વંદન કરીએ છીએ અને આ સાથે જ ફરી મળવાના કોલ સાથે છૂટા પડીએ છીએ. શુભરાત્રી. ભારત માતા की. रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला. हो आज रंग दे, हो माए रंग दे मेरा, रंग दे बसंती चोला 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 माए, रंग दे बसंती चोला. तो मैं घर पे आ चुका हूँ एंड प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ था, कलाकार भी बहुत अच्छे थे एंड थक भी गया हूँ. तो वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लेना. टाटा बाय बाय. तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में.